Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover the second chapter of class 10th NCERT Geography. The name of the chapter is Forest and Wildlife Resources. Forest and Wildlife Resources. Flora and fauna in India. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. हर area में कुछ unique animals और plants होते हैं. In fact, India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity. और जो इंडिया है वो वर्ल्ड की richest country में से है biological diversity में and has nearly 8% of the total number of species in the world. और 8% total number जो world में species हैं उतनी इंडिया में है. These diverse flora and fauna are so well integrated in our life that we take these for granted. और फ्लोरा और फोना वेल इंटीग्रेटेड तरीके से है, इस वजह से हम इनको एज अ ग्रांट ले लेते हैं. बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, लेकिन ये ग्रेट स्ट्रेस के अंडर है मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट. Some estimates suggest that at least 10% of the India's 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. और estimate के according 10% जो इंडिया का recorded wild flora है और 20% mammals है वो threatened list में है. Many of these would now be categorized as critical, और इनमें से कुछ को categorize किया गया है as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, and plants like Madhuca insignis. In fact, no one can say how many species may have already been lost, और हम नहीं कह सकते कि कितनी species अभी तक lost हो चुकी है. Let us now understand the different categories of existing plants and animal species. Based on IUCN, जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है स्पीसीज को नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. फर्स्ट है इसमें नॉर्मल स्पीसीज. नॉर्मल स्पीसीज कौन सी होती है? स्पीसीज whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, साल, पाइन, rodents, etc. स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन लेवल कंसिडर किया जाता है नॉर्मल उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे कि कैटल, साल, पाइन, rodents. फिर है endangered species. These are species which are in danger of extinction. Endangered species वो होती है जो danger में होता है extinct के. The survival of such species is difficult. इनका survival difficult हो जाता है if the negative factor that have led to a decline in their population continues to operate. अगर जो negative factor जिसकी वजह से population decline हो रही है वो continue रहा तो इनका survival difficult हो जाता है. इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकैकू, संघाई जिसे कहते हैं ब्रो एंटलर डियर मणिपुर में. इसके बाद है वल्नरेबल स्पीसीज. These are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category. ये species होती है जिनकी population decline हो रही है और वो endangered category में जा सकता है in the near future if the negative factor continues to operate. The example of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. उसके बाद है रेयर स्पीसीज. स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल. स्पीसीज की वो कैटेगरी जो इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल में जा सकती है इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग दैम कंटिन्यू टू ऑपरेट. और इसके एग्जांपल है जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एटसेट्रा. फिर है एंडेमिक स्पीसीज. These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. ये species जो कुछ particular areas में मिलती है usually isolate हो जाती है natural और geographical barriers से.
इसके बाद extinct species. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. ये वो species होती है जो कि सर्च करने के बाद भी ना मिले, जो इनका प्लेस है वहां पर भी जहाँ पे ये अकर करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एशियाटिक चीता. इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल. ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है. द चीता इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली का यूनिक मेंबर है एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर. द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड. इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग teardrops shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. और इसके पहचान जो है वो ये है कि टीयर ड्रॉप्स लाइक लाइंस होती है ईच साइड ऑफ नोज और ये माउथ तक जाती है इसके. प्रायर टू द 20th century चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अफ्रीका एंड एशिया. और 20th century में चीता वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे अफ्रीका और एशिया में. टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे. और आज के टाइम पे एशियाटिक चीता नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे. द स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952 और 1952 में इसकी स्पीसीज को डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटिंक्ट. We have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नेचर को रिसोर्सेज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से हमको रिसोर्स मिल रहे हैं जैसे कि वुड हो गया, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एटसेट्रा. सो इट इज वी अवरसेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. और हम लोग ही डिप्लीट कर रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को. द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. और एक ग्रेटेस्ट डैमेज इंडियन फॉरेस्ट को हुआ था कॉलोनियल पीरियड पे ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज. एक्सपेंशन की वजह से रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से. Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. और independence के बाद भी agricultural expansion continue रहा और वो एक major cause रहा depletion का forest resource का. Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. और 1951 से 80 तक के बीच में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में. फिर है द हिमालयन यू. हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, needles, twigs and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancer. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. और एक केमिकल कंपाउंड इससे निकलता है जिसको टेक्सोल कहते हैं. वो इसकी बार्क, नेडल्स, ट्विग्स एंड रूट से ट्रीज की निकाले जाते हैं. उसको यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए कैंसर को. और इसकी जो ड्रग है वो बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है वर्ल्ड में. The species is under great threat due to over exploitation. और over exploitation की वजह से ये species threaten हो चुकी है. In the last 1 decade, thousands of yew trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. Habitat destruction, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to the decline in India's biodiversity. और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो रहा है हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर की वजह से. अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation in is third world
in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation, और overpopulation भी environmental degradation का एक cause है. However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. इसके बाद है कंजर्वेशन होना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का. किस तरीके से कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम इसेंशियल. और जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का वो इसेंशियल बन चुका है. कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉयल. तो कंजर्वेशन जो है वो प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जैसे कि वाटर एयर और सॉयल को. इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्लांट और एनिमल की, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज. और एग्रीकल्चर में हम स्टिल डिपेंड करते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. In the 1960 and 1970, conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 और इसके बाद Indian Wildlife Protection Act आया 1972 में with various provisions for protecting habitats. An all India list of protected species was also published. The thrust of the program was toward protecting the remaining population of certain endangered species. और जो बाकी के endangered species थे उनको protect करने के लिए by banning hunting, बैन करके हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. Subsequently, central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries, about which you have already studied. Project Tiger, one of the well-publicized wildlife campaign in the world, was launched in 1973. और Project Tiger जो well-publicized wildlife campaign था वर्ल्ड का, उसको लॉन्च किया गया था 1973 में. इसके बाद है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज रादर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट दैम. अगर हम चाहते भी हैं कंजर्व करना वास्ट फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, तो ये डिफिकल्ट होता है हमारे लिए. इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट. और इंडिया में मोस्टली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंजर्व किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. These are classified under the following categories. और इनको क्लासीफाई किया गया है अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट. और इंडिया की हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है उसको डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट. उसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. और ऑलमोस्ट 1/3 जो पार्ट है टोटल फॉरेस्ट एरिया का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और इसको डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन. उसके बाद है अनक्लास्ड फॉरेस्ट. These are other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. और ये forest these are the other forest, ये other forest और wasteland है जो belong करते हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट इंडिविजुअल से या फिर कम्युनिटीज से. रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मेंटेनिंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनको रिफर किया जाता है एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर. इनको यूज किया जाता है टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट. और मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में अंडर परमानेंट फॉरेस्ट. फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब का लार्ज एरिया परसेंटेज रिजर्व फॉरेस्ट का
रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, एंड वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इनका एरिया आता है ज़्यादातर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर. All northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है और गुजरात का पार्ट वो आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में, मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज. इनको मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री. जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज है वो न्यू नहीं है हमारी कंट्रीज में. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज. और हमारे देश में कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट में ही रहती है. इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स. और कुछ लोकल कम्युनिटीज स्ट्रगल करती है कंजर्व करने के लिए इन फॉरेस्ट को, along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, विलेजर्स हैव फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और उन्होंने फोर्ट किया इसके लिए. इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. और कुछ विलेजेस में विलेजर्स खुद प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट को और रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को. द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulation. और अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के 5 विलेजेस हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को एज भैरवदेव दाकव सेंचुरी. और वहां पे उन्हीं लोगों के रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं, गवर्नमेंट के नहीं. विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, ये हंटिंग को अलाउ नहीं करते हैं. एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट. सेक्रेड ग्रोव्स क्या होता है, किसे कहते हैं? सेक्रेड ग्रोव्स अ वेल्थ of diverse and rare species. Nature worship is an age old tribal belief. जो nature worship है वो एक age old tribal belief है based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. और इन्हीं बिलीफ की वजह से प्रिजर्व करते हैं कुछ सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट को प्रिस्टाइन फॉर्म में, जिसको सेक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है. द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. These patches of forest or parts of large forest have been left untouched. और ये untouched forest होते हैं by the local people and any interference with them is banned. और कोई भी interference यहाँ पे ban रहता है. The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. और जो famous Chipko movement हुआ था उत्तराखंड में हिमालयाज एरिया में, उसने सक्सेसफुली रेजिस्ट नहीं किया था डिफोरेस्टेशन को, बल्कि एफोरेस्टेशन को भी बढ़ावा दिया था. Attempts to revive the traditional conservation method or developing new methods of ecological farming are now widespread. Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tihri and Navdanya have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. और जो farmers और citizen के group ने जो बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में किया था और नवदन्या इन सब ने शो किया था कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, और ये इकोनॉमिकली वाइबल भी होता है. ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है. सो थैंक यू एवरीवन. इफ यू लाइक आवर वीडियो यू मे फॉलो ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब.